I would like to introduce Mr. Rahul Mehta. He's the Chief Operating Officer for Furniture and Fitting Skill Council. He brings a vast experience in woodworking sector, event management, and allied fields. So his passion towards skill development and social development sector has been so much that he left his lucrative corporate opportunities and he joined this development sector. So the session dedicated to Mr. Rahul Mehta is how skill competitions can be your game changer in your professional growth. Over to you, Rahul. Thank you, Devesh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, panelists who have come from various backgrounds and have added real value today. जिसका फायदा आई एम श्योर सब पार्टिसिपेंट्स को मिला है. पार्टिसिपेंट्स कैटेगरी में हमारे पास में आज स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री के लोग भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, और उन सबकी इंपॉर्टेंस के लिए ही आज इस तरह का सेशन यहाँ पर रखा है दैट एवरीबडी कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. So touching upon the points that the panelists have talked about, आशीष जी ने NSDC और इंडिया की स्किल्स जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह से हमने कॉम्पिटिशन करा, और उन्होंने जो स्टोरी शेयर करी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो ब्यूटी स्किल्स के उस कैंडिडेट की हो जिसने 2012 से चालू करते हुए आज 2020 तक की जर्नी के अंदर में एक कैंडिडेट, एक पार्टिसिपेंट, एक एस्पिरेंट, एक विनर और एक आफ्टर दैट प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना के काम चालू किया है. चाहे नरेंद्र जी हैं जिन्होंने डिफरेंस इन वेरियस वुड वर्किंग ट्रेड्स बताया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आज की डेट में जो चैलेंज इंडस्ट्री फेस करती है वो ये है कि वो फर्नीचर इक्वल टू कारपेंटरी समझती है. आज अगर आप किसी को बोलेंगे फर्नीचर इंडस्ट्री में काम करते तो वो ये समझेगा कि आप कारपेंटर है, और ये शायद 10 साल या 15 साल पहले बात करते तो वो बिल्कुल भी यही समझता है कि आप ही कारपेंटर है. जबकि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इस इंडस्ट्री के अंदर में आज EY के एक एस्टिमेट के हिसाब से 2022 तक कम से कम 50 लाख जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि केवल कारपेंटरी पे नहीं है. कम से कम 150 से ज्यादा 150 more than 150 job profiles are there on which there are job opportunities available. So that difference was highlighted, and I'll share some points on that as well. Ashok told us about the difference between the world, where is the world today in terms of the woodworking trade, or whether it's a world today in terms of the overall industry as it is looked upon, and where it is in India, and the gap that exists and how the gap is getting bridged and how we can all get advantage out of it. So even that is a very important aspect of takeaway that we can have from the session. Mr. Satyan touched upon from the industry perspective that what is the role that industry is playing today, and I'm very thankful for him to have actually mentioned the part that how his own interest, which was initially based on marketing front, actually changed to a more social and a more industry driven perspective, which was about actually fulfilling the demand of the industry by providing the right skill set. Now, if you'll see today, he represents the industry and likes of the industry which is there. And if he's saying that today that we have demand in the industry for the right skilled manpower, it is just a representation of the kind of opportunity which is available before the youth of the country today, that they can consider furniture, interiors and fitting industry and the light sector as a segment wherein you can develop a career opportunity. And इसके बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अनंत ने अपनी जर्नी के थ्रू बताया है कि किस तरह से एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए एक सिंपल गोल के साथ में कि अपने फादर को हेल्प करना है, और जो कि यूजुअली वुड वर्किंग के अंदर में रहता है कि आप अपने पापा से सीख रहे हैं, दादा से सीख रहे हैं और आप उस इंडस्ट्री में चले जाते हैं. उन्होंने वहां से चालू करते हुए एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आज वर्ल्ड स्किल्स में पार्टिसिपेट किया, और वहां से आगे आगे धीरे बढ़ते हुए वो आज एक इंडिया की बड़ी कंपनी के अंदर में डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और खुद तो कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे को भी अब सिखाने के दर्जे पे आ चुके हैं. सो इस अगर पूरे सेगमेंट की बात की जाए, एंड व्हाई आई एम्फसाइज ऑन ऑल द स्पीकर्स एंड व्हाट दे हैव सेड इज दैट द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टच अपॉन इज दैट हाउ इज दिस स्किल competition, because everybody who spoke today is connected to the skill competition and majorly the world skills competition that is happening. So how is this skill competition actually acting as a game changer? So इसके लिए समझना है जरूरी है कि जिन लोगों की बात अभी हमने करी है, ये है स्किल इकोसिस्टम. ये गेम चेंजर फॉर स्किल इकोसिस्टम क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए ये समझना जरूरी था कि स्किल इकोसिस्टम क्या है.
तो ये ट्रेनर्स स्किल इकोसिस्टम है, ये एक्सपर्ट्स स्किल इकोसिस्टम है, ये इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये स्किल इकोसिस्टम है, और ये जो कैंडिडेट हैं ये खुद अपने आप में पूरा स्किल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ में एनएसडीसी एंड एमएसडी की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है ये पूरा एक स्किल इकोसिस्टम है। अब इसमें वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन किस तरह से गेम चेंज कर रहा है या फिर क्या ऐसा कर रहा है जिसके कारण आज हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज इस कंपटीशन होने के कारण हम इस तरह से एक दूसरे के साथ में आमने सामने आ पाए हैं और इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से स्किल्स गेम को चेंज कर सकती है या किस तरह से स्किल्स ने गेम को चेंज किया है बहुत सारे लोगों के लिए। आज से 5 साल पहले अगर देखेंगे तो ना अनंत was existing on the world skills map, neither Narendra Singh was existing on world skills map, neither Ashok was existing on world skills map, neither Satyam was existing on world skills map. यहाँ तक कि FFSC भी exist नहीं करता था। तो ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है जो कि क्रिएट हो गई because of the world skills competition that was there. Now talking specifically about skills की importance ही क्यों है, हमें चाहिए ही कि उस स्किल्स की कोई भी चीज करे या उसके ऊपर में कंपटीशन किया जाए। तो सबसे पहली बात एंड द फर्स्ट टेक अवे दैट आई वुड वांट पीपल टू टेक फ्रॉम दिस सेशन इज दैट स्किल्स, राइट स्किल्स डायरेक्टली ट्रांसलेट टू द ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट इज अवेलेबल। नाउ दिस स्किल्स कैन बी ऑफ एनी फील्ड एंड दिस स्किल्स कैन ऑफर द अपॉर्चुनिटी इन एनी इंडस्ट्री, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फर्नीचर एंड फिटिंग सेक्टर या फिर इंटीरियर्स, फर्नीचर और अलाइड सेक्टर। तो आज हम उसकी बात करते हुए अगर कहें तो ये स्किल्स जो कि केवल 3 ट्रेड्स ऑफ वर्ल्ड स्किल्स से हम बात करते हैं, जो जॉइनरी हो गया, कैबिनेट मेकिंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, इन 3 ट्रेड्स में भी जो स्किल्स लगती हैं वो स्किल्स के बेसिस पे आपको कम से कम भी 20 से 25 अलग अलग तरह के जॉब रोल्स के अंदर में डायरेक्ट करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। That is the importance or that is the opportunity that is there. That is why skills is important, or that is why we are talking about this whole subject, that why this skill competitions are also important. So these skill competitions in one way are leading a way or are leading us towards developing our own skills because of an end goal of having a good career which can enhance our life, which can enhance our life standards, and which can enhance our overall way of living, apart from benefiting the industry, apart from benefiting the country, हम खुद अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकें, इसलिए आज ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आज अगर टेक अवे लेके ये गेम चेंजर कैसे है या स्किल इकोसिस्टम में स्किल कंपटीशन गेम चेंजर कैसे है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। क्रिकेट सब देखते हैं, क्रिकेट सबने देखा होगा। आज से 20 साल पहले क्रिकेट का मेजर डोमिनेंस जो था वो था टेस्ट मैचेस के ऊपर में, और स्लोली हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव चेंज होते होते T20 आ गया। तो T20 जब आया वो एक नया गेम फॉर्मेट था, स्किल्स क्रिकेट की ही थी लेकिन गेम फॉर्मेट नया था। उसके साथ में क्या हुआ कि जहां पर केवल एक इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन होता था, रणजी के लिए सिलेक्शन होता था, रीजनल्स के लिए सिलेक्शन होता था, अपॉर्चुनिटी बढ़ गई कि हर एक सिटी से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक स्टेट से लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई कि वो अलग अलग फॉर्मेट ऑफ द गेम्स में खेल सके। और उसके कारण एक ओवरऑल इकोसिस्टम डेवलप हो गया। इकोसिस्टम डेवलप हो गया, जो कोचेस डेवलप हुए, इकोसिस्टम डेवलप हो गया, जो टीम्स डेवलप हुई, इकोसिस्टम डेवलप हो गया, जो नए कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर पाया टू बिकम अ क्रिकेट प्रोफेशनल। तो उससे ओवरऑल इंडस्ट्री को, ओवरऑल इकोसिस्टम को एक फायदा मिला। और आज हम देखते हैं कि किस तरह से T20 की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि पिछले 10-12 साल से IPL जैसे मैच ने पूरा डिमेंशन ही बदल दिया जिस तरह से क्रिकेट को देखा जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया जाए तो ये दिया जा सकता है प्रो कबड्डी, जिसकी हम बात करते हैं। आज से 20 साल पहले कबड्डी के बारे में केवल कबड्डी खेलने वाले या फिर उनसे रिलेटेड जो लोग थे वो जानते थे, बट आज की डेट में जब हम प्रो कबड्डी की बात करते हैं तो हमारे जहन में डायरेक्टली वो इमेज आ जाती है जहाँ के ऊपर बंदे ले पंगा का डायलॉग बोल रहे हैं या ले पंगा का कैंपेन चल रहा है। तो किस तरह से इस कंपटीशन ने एक गेम को जो कि एक लिमिटेड दायरे में था, लिमिटेड इकोसिस्टम में था, उसने उसकी वैल्यू बढ़ा दी और आज करियर अपॉर्चुनिटीज कई लोगों के लिए कबड्डी जैसे प्रोफेशन में भी किया है। केवल प्लेयर्स के लिए नहीं, कोचेस के लिए किया है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनके लिए किया, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं उनके लिए किया है, उन सब लोगों के लिए किया। और एग्जाम्पल जो आपसे रिलेट करें और उस तरह का बताया जाए तो इंडियन आइडल, सारेगामापा, रोडीज, अगर इन कॉम्पिटिशन की बात करें तो पिछले 10 से 12 साल से लास्ट चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि इन कॉम्पिटिशन चलते, डांस इंडिया डांस फॉर्म जैसे कॉम्पिटिशन चलते, कितने सारे मॉम एंड पॉप डांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, कितने सारे लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेशन चालू कर दिया।
कितने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी जॉब्स की मिली है, बिजनेस की मिली है, ताकि वो इन डांस करने वालों के लिए, इन डांसर्स के लिए, इन डांस इंस्टीट्यूट्स के लिए कॉस्ट्यूम दे सके, सेट्स डिजाइन कर सके, म्यूजिक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, डांसर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज भी आज क्रिएट हुई है। तो जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्किल से एक स्किल इकोसिस्टम को इफेक्ट होने की, तो ये कॉम्पिटिशन के मीडियम से ये एक प्रूवन एग्जाम्पल है कि किस तरह से ओवरऑल इकोसिस्टम को एक एडवांटेज, एक फायदा मिला है। तो आज इस कॉम्पिटिशन के कारण ही आज हम ये बात कर पा रहे हैं कि किस तरह से कैबिनेट मेकिंग अलग चीज और कारपेंट्री अलग है। आज इंडिया में इस तरह का सेग्रीगेशन नहीं है, बट विद द मीडियम ऑफ एनएसडीसी, विद द मीडियम ऑफ एमएसटी, विद द मीडियम ऑफ डेडिकेटेड स्किल काउंसिल फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग सेगमेंट, हम इन टॉपिक्स पर और इन ट्रेड्स पर प्रोग्राम्स बना पा रहे हैं, प्रोग्राम्स क्रिएट कर पा रहे हैं, ताकि आने वाली जनरेशन को ये फायदा मिले कि वो इन अपॉर्चुनिटीज को एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर लर्निंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से अडॉप्ट कर सके और साथ ही साथ उसमें अपना करियर बना सके। तो जिस तरह से आज हम एग्जांपल देख रहे हैं अनंत का, जो एक वर्ल्ड स्किल्स पार्टिसिपेंट होने से लेकर आज एक प्रोफेशनल बन पाए हैं, या जिस तरह से हम एग्जांपल देख रहे हैं नरेंद्र जी का या फिर अशोक जी का, जो कि वर्ल्ड स्किल एक्सपर्ट होने के कारण अपने करियर में भी बढ़ पाए हैं और दूसरों को भी करियर में एडवांस कर पाए। इस सब तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में डेवलप होती है और हमें आज मिलती है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि कोई स्किल छोटी या बड़ी नहीं है, और कोई स्किल और हर स्किल हमें एक अलग तरह की अपॉर्चुनिटी दे रही है। मैंने एक छोटा सा लिंक आप लोगों के साथ में चैट बॉक्स में शेयर किया है, जहां पर आप वर्ल्ड स्किल्स की वेबसाइट पे जाके अपनी इच्छा अनुसार स्किल्स को चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कौन सी स्किल्स के अंदर में एक्चुअली इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कौन सी स्किल्स है जिसमें आपको करियर ऑप्शन मिल सकता है। तो ये आपके लिए अच्छा टेक अवे हो सकता है। सेकंड, जो एस्पिरेशनल वैल्यू की बात हम कर रहे थे कि आज एक ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में जो बंदा इन स्किल्स के बेस पे ट्रेड में घुसता है, वो $50 to $60 पर आवर इनकम अर्न कर पाता है। एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है टू बिकम अ कारपेंटर एंड टू प्रैक्टिस कारपेंट्री। जैसे मेडिसिन के लिए पड़ती है, लॉयर के लिए पड़ती है, उसी तरह से इस फील्ड के लिए भी पड़ती है। तो आने वाले समय में स्किल काउंसिल और सेक्टर काउंसिल्स के चलते हुए आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज बनेगी कि आप इन ट्रेड्स में भी, जहां आज 50 लाख से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है 2022 तक, और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कारण और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती जा रही है, आप वहां भी अपना करियर बना सकते हैं। So right skills transform into right career opportunities, and these skill competitions will definitely be able to participate in these skills. So I would like to end on that note that you pick any skills, not just into woodworking. It can be anything that excites you, that entices you to have a career in it, and try those skills, practice those skills. Like Satyan also mentioned, like Ashok also mentioned, like Narendra also mentioned, and आशीष ऑल्सो मेंशन, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तभी आप इसमें निखर के बाहर आ पाएंगे और उसका एक्चुअल फायदा उठा पाएंगे। So, इसे ध्यान में रखते हुए आप कोई भी स्किल्स को पिक करें, उस स्किल्स को प्रैक्टिस करें और इसका मैक्सिमम एडवांटेज अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए ले सके। इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड माय नोट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द स्पीकर्स एंड ऑल द पैनलिस्ट्स हु जॉइन्ड टुडे एंड हु contributed their thoughts towards development of our overall ecosystem. Thank you so much, everyone. Thank you, Rahul, for your valuable words and motivating the people out there.